Hello everyone. So, till now we have covered all the models, right? And also we have seen the comparison among them like iterative, classical, prototype, spiral, evolutionary, and then comparison of all the models and why we need the models. Uh, Earlier, when models were not introduced, exploratory style was used. This also we have seen, right? Now, I just want to draw your attention on one more point, and that is if you are following any model for the development of the software, right? You means mm, companies following any one of the model for development of the software, right? So what you will do, let's see with an example. Then I'll be switching for agile development process. What is agile, right? See one example first. What it is written, suppose you have an idea of software. Yes, suppose you want to develop any software. So what you will do, you have some vision in your mind and some details for the software which you are going to develop. So what you will do, you will also now you will what you will develop the 200 pages long report based on the requirement, user reviews, and many things required, right? So what you have done basically is you have developed a 200 pages report, and based on it you are going to develop the software, right? So this report is also be verified by the user means the software for which you are going to develop. Let's suppose it is account software, then the CA and the clerks, these are CAs are the user for that software, right? So you will also be having the idea on the software, right, from them. अब हो सकता है now you this can also happen that you have to modify the report or the software based on the customer feedback. अब जब आपके पास पूरी रिपोर्ट रेडी हो गई है, तब आप क्या करोगे? डेवलपर्स को हायर करोगे, पूरी टीम बेस तैयार करोगे, एंड इट विल टेक अराउंड 3 मंथ्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी एक मॉडल फॉलो कर लिया है आपने बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, एंड इट टुक 3 मंथ्स टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। अब क्या करोगे? दोबारा से कस्टमर के पास जाओगे, उसका इवेल्युएशन कराओगे वेदर द एवरीथिंग इज़ फाइन, और जस्ट टेक द फीडबैक ऑफ द कस्टमर। ठीक है, यही करोगे ना? नाउ लेट सपोज कस्टमर को कुछ चेंजेस चाहिए, उसने कुछ बताया कि दिस इज़ नॉट दिस ऑल्सो फीचर आई वॉन्ट टू इंक्लूड इन द सॉफ्टवेयर एंड दिस थिंग आई डोंट वांट। तो इस तरीके से कुछ अपडेशन उसने बताया, फीडबैक उसने अपना दिया। नाउ व्हाट यू विल डू, you will again maintain the SRS and then follow the whole process and build up a updated software. It is going to take another 2 or 3 months, right? So full furnished software took around 6 months to be present in the market for the customers to use it. So this is what all happens with the traditional with the uh, model based development of the software, right? अब यहाँ पर एक देखो कैच है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? दिस इज व्हाट अबाउट दिस थिंग इज रिटन इन द दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में यही सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन नोटिस इज द कस्टमर इंटरेक्शन और द कस्टमर्स फीडबैक टेकिंग इज़ वेरी लेस। केवल दो बार केवल 2 बार फीडबैक लिया गया है, राइट? एक बार स्टार्टिंग में वाइल डेवलपिंग द SRS, एंड एट द लास्ट
when they have developed the software, then they have taken the feedback and then again updated it, right? तो इसको हम लोग क्या रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कस्टमर इंटरेक्शन और कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमाइज कर दो। हर 1 वीक के बाद जो भी अपडेशन हुआ है, टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर और इन्वॉल्व द कस्टमर ऑल्सो इन इट। दैट इज़ वन थिंग ऑफ एजाइल। दिस इज़ वॉट इट इज़, एजाइल, राइट? प्लस पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है? व्हाट इज़ पेयर प्रोग्रामिंग? यस, पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक ही सिस्टम पे दो पर्सन्स बैठ के एक ही चीज़ को प्रोग्राम कर रहा है या हेल्प करा रहे हैं एक दूसरे की। दैट इज़ पेयर प्रोग्रामिंग। वहाँ पर टू माइंड्स का यूज़ होके एक लेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा, राइट है? मतलब जहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं वहाँ पर पेयर प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक ही बार में हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि बार एक ही बंदा लगा हुआ है तो उसको बार बार अपडेशन करना पड़े, राइट? और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी क्वालिटी चेकर्स जो पर्सनस हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं क्वालिटी के रिगार्डिंग, उनको भी हम इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। ओवरऑल व्हाट एजाइल सेज कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स क्या होता है? स्टेक होल्डर मीन्स everyone who is related to that software which is in development phase or it is developing, right? So customer, whole development team, owner, right? User, so these all are the stakeholders, ठीक है? तो सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमाइज कर दिया जाए एंड देयर शुड बी कंडक्शन ऑफ मीटिंग आफ्टर ईच वीक। हर वीक के बाद एक मीटिंग होगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे एंड दे विल चेक द अपडेशन और द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाएंगी, व्हाट विल हैपन? जो 3 मंथ्स हमने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, जो कि 200 पेज की तुमने रिपोर्ट बनाई थी, उसको डेवलप किया था कस्टमर फीडबैक के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या किया है, SRS के बाद भी इन्वॉल्वमेंट ही रखा है आपने। हर वीक पर वीक you are conducting a meeting with all the stakeholders. So what will happen, the time which took earlier 6 months, it will reduce to 3 or 3.5 months. Is it okay? Now one more thing, this is what is agile, the benefit of agile development process, यही agile होता है, ठीक है? And one more thing, what is done in agile development process is the initial setup or initial development of the software takes only hardly 2 or 3 weeks. Within 2 or 3 weeks, some sort of features within the software is released in the market and is used by the user, ठीक है? कस्टमर को as soon as रिपोर्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो within 2 or 3 weeks it will be in the market or it will be with the user or the customer. उसके बाद भी उसमें work will continue on meeting and stakeholder with the stakeholders will also continue and feature updation के through features add होते रहेंगे. This is what is agile overall. समझ में आई बात? डिफरेंस एक्सप्लोरेटरी था, फिर मॉडल्स आए, फिर एजाइल आए। ना यू माइट थिंक कि देखो होता क्या है, इनमें भी मॉडल को ही फॉलो किया जा रहा है बट विद सम इफ़िशिएंट मैनर, राइट? तो दिस इज़ व्हाट इज़ that ensures the agile software development methodology that ensures the agility, flexibility and adaptability during development and maintenance of the software. Okay, it means, and flexibility means
Any extra feature required, it can be added later also, right? Adaptability means, suppose the software is developed in only iOS, then it can also be changed into the Android or the Windows, right? That is called as adaptability of the software. Agility क्या होती है? With respect to time, it should not become slow or hang or anything, right? That is what is agility. Certain amount of time के लिए जिसके लिए वो उसको डेवलप किया गया है, it should go on without any issues, right? So based on some agile manifestos, development process is carried out. What are those agile manifestos? ये आप लोग एक बार देख लेना. These are the problems when we will not be using the agile, it will which will be coming, and we have already discussed all, right? सी, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई. स्पीड एजाइल से होता क्या है बेनिफिट? स्पीड टू मार्केट, 2-3 वीक्स में डेवलप करके मार्केट में आ जाएगा. कस्टमर फीडबैक रेगुलर इंटरवल पे लिया जाएगा. क्रॉस फंक्शनल इंटरेक्शन इज व्हाट? द पर्सन्स who are doing different works. डिफरेंट वर्क मीन्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी पे जो वर्क कर रहे हैं उनको भी आपस में इंटरेक्शन कराया जाएगा. इंटरेक्शन होना चाहिए उनके बीच में भी. कम्युनिकेशन गैप शुड नॉट बी देयर, राइट? इटरेटिव मूवमेंट्स, या मतलब एक बार डेवलप कर दिया उसको अपडेट करना, फिर अपडेट करना, फिर अपडेट करना. दैट इज कॉल्ड एज इटरेटिव मूवमेंट्स. Some of the popular agile methods are rational unified process, Scrum, crystal clear, extreme programming. These are the methodologies of the agile which we will be covering, right? DSDM. Okay. So this is manifesto. Individual and interactions. सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें अपडेशन की रिक्वायर्ड बहुत जल्दी हो सकती है, चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड इंटरेक्शन मीन्स कॉपरेशन विद पेयर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ये मैनिफेस्टोज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो कि जिसके बेसिस पे वर्क किया जाता है, ठीक है? इन मेथोडोलॉजीज़ में जो भी हमने देखी है, स्क्रम और ये क्रिस्टल के एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये करके इनको देखेंगे हम. तो इनमें बेसिक मैनिफेस्टोज का पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है? वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन्स 1 और 2-3 वीक्स में डेमो वर्किंग सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है कस्टमर को, और उससे कस्टमर को ईजी हो जाता है क्या? अंडरस्टैंड करने में, अपना फीडबैक देने में. कस्टमर कोलैबोरेशन, ये बताया ही था कि प्रॉपर स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं सबके साथ मीटिंग होती है, ठीक है? रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, ये भी हो चुका है कि बेस्ड ऑन द फीडबैक क्विक चेंज करके फिर से उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है? तो यही यहाँ पे बताया गया है. जो दोबारा हमने जो अभी डिस्कस किया, ये लेट्स गो बैक टू योर, यहाँ लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर आइडिया, जो 200 पेज की रिपोर्ट जो डेवलप हुई थी अपनी, तो उसमें क्या इंटरेक्शन हो प्रॉपर, जो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? देखो, यही कह रहा है कि एक बार आपने आइडिया बता दिया टीम को, प्रोटोटाइप वर्जन डेवलप कर लिया विद इन वीक्स, कस्टमर को भेज दिया फीडबैक के लिए, अभी कंप्लीट नहीं है बट फीडबैक के बाद चेंजेस करे और प्रोडक्ट को दे दिया. प्रायोरिटाइज के बेसिस पे फीचर्स ऐड करते हैं इसमें. इसी को हम इटरेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं. जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला फीचर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करके अपडेट कर दो, देन विल वर्किंग ऑन द नेक्स्ट प्रायोरिटाइज फीचर्स, राइट? So what we can say, through agile method we are basically breaking down the huge task of building a software to a iterative process that works in loops with incremental improvements. I think this line must be very much clear from the discussion what we have done till now, ठीक है? यानी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो
छोटे छोटे पार्ट्स में उनको हम करते हैं, दैट इज इटसेल्फ कॉल्ड एज द इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स, राइट। तो हम लोग इसको ये मेथड्स देखेंगे एजाइल के इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक एजाइल का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ एजाइल। इनके मेथड्स हैं, दैट इज़ स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, DSDM। इसमें स्क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम बॉक्स के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन ईच ऑफ द मेथड्स। ओके, थैंक यू।